Hello students. So in our last class we discussed how to create a series object. What is a series object, and there are some different ways to create a series object. Today we will see another method to create a series object, that is using a scalar value. But before that, let's quickly revise whatever we had discussed. So we discussed what is a series data structure. We saw that it is nothing like an ND array, which is basically called a data array, and we also have index like a 2D, like an ND array, but here the index is user defined, and that is the only difference we saw till now, that a series data structure basically has a 1D array, that is called a data array, and we also have an index array, basically an associated array or data labels, which is user defined. In case of ND array, it was 0 1 2 3 only. We saw how to create an empty series object, and that was simply the pandas dot series. It was an empty series object, and we try to print that series object. It will basically show that there is an empty array, and the data type will be float 64 by default if we do not specify any here. We also saw creating non-empty series objects. How to create a norm? We saw that this is a general syntax for series function. Data is equal to none, index is equal to none, and dtype is equal to none. And these none are basically default values. So if we do not provide any value for data, index, or dtype, it will basically be the none type. And what will happen if they are none, we have already discussed in our previous classes. Okay, if you do not remember that, do not worry, we will see later. So this is the general syntax for the series function, and now we will see the examples. So basically the data can be, so this data can be a sequence, an ND array, a dictionary, or a scalar value. Sequence can be a list, tuple, or a string. So we have seen examples of sequence, we have seen examples of ND array, dictionary. So today we will see the scalar value examples. Okay, let us see. And index can be basically a sequence and ND array. Index cannot be a scalar value, and we will not talk much about it. Basically you can remember that index cannot be a sequence scalar value. It will reproduce an error. There might be many more combinations of that, but we are not going to discuss every of the combination. We are only discussing whatever is given in our syllabus. So let us see how to create an ND array using a, how to create a series object using an ND array, or not basically ND array, because range function is basically a sequence. It is a sequence. Now which type of sequence? It is a list, it is a tuple, or it is a string. Whether it is not of any type of this, we have already discussed that range 5 returns a sequence 0 1 2 3 4, which is a immutable sequence, neither a list nor a tuple or ND array or string. ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ना तो एक लिस्ट है, ना ट्यूपल है, ना एनडी अरे, ना स्ट्रिंग है. ये कुछ एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, लेकिन वो किस टाइप का है ये क्लियर नहीं है. लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि ये इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल का मतलब है कि इस जो ये सीक्वेंस रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें जो भी वैल्यूज़ होगी. ठीक है, दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड. वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेंज एंड a range function. Okay, so we have also seen that how to create a series object using a list. If we specify a list using a tuple, so here are parentheses basically, and in this case here are the square brackets. We see that in both the cases the result will be same, a data array 4 6 8 10 and an index array 0 1 2 3. Why? Because whatever, whether it is a list or tuple, doesn't matter, our final product is a data, is a series object. We also saw that if we provide the hello world as a string, then the output will be a single element in the data array hello world, and the index will be by default 0. So one questions that might come, if I want to create a series object like this, HELLO. So let's move to a white page. Suppose if I created SO is equal to pd.series, and here is my hello world.
So I want to create an array like this, a series object basically like this, like H, E, L, L and O, and similarly it will, or here, or it will W, O, R, L, D, or similarly it will. So I wanted to create an array, a series object basically like this, but it had created an array like this, hello world. So how to do in this case? The one solution is I can do like this, pd dot series, okay, and here I can create a tuple or a list like H, E, L, or similarly we can proceed. So this is one method, but definitely it is not a good method, because if you try to write this string as a list, it will consume time. So we have some shorter method. So what to do in that case? We will do so is equal to pd dot series. We will create a square bracket, or we can write ch for the character, or any variable we can take ch, or for ch in hello world, and here. So this will basically create our this array with the index 0, 1, 2 by default, because we have not passed the index. Okay, writing in the tablet does not appear good, so you try basically on your own. So this is one more example. Okay, so this is the example, pd dot series, and we create a square bracket and we write ch, or we can take any variable like x for x in hello world, and it will basically create this array. So what this will does, this will basically create a list H, E, L. So we have done the same thing using this formula, using this trick basically. Okay, so basically we have created a list using this. So instead of manually created a list, we have created like this. So if we want to make a series object with each cell has a different character from the string, then we have to do this. Okay, that's it. So let's move to our previous thing. So now here we see pd dot series np dot arrange. So basically now here the argument is an nd array. So we have seen the examples of a list, a tuple, or now we are seeing the example of a arrange function. So arrange function, what it does, it will create an nd array. So it will work same as the range function. Okay, but the difference we have discussed that it will return an array, not an immutable sequence, and it will work same as the range function. Okay, basically you can consider this a as array plus range. Okay, we have discussed this thing. So let's move on. Now we see the question, write a program to create a series object using an nd array that has 5 elements in the range. So this we have discussed. The linear space will create, basically it will also return an nd array, and we have seen a tile. This is one more example. We have seen that this will create this series object, and we saw that how to create a series object using a dictionary. So we taken an example of January, February, March. These were January, February, March were keys. So basically the keys will become the index array, and the values 31, 28, 31 will become the data array. Okay, we saw that the order here written January, February, March, but the order here will be different. What order? We are not sure, because this is the representation of the dictionary, but in actually this January 31, February 28, this will not be in any order. I mean, there will be an order, but what order we cannot say. Okay, so similarly we cannot specify this order कि जो series object में जो order होगा keys का, जो index में जो keys हम होगी हमारी, उसका क्या होगा, वो exactly इसके same होगा या different होगा, ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो series जो हमारा dictionary होती है उसमें keys का कोई order होता नहीं है. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल, क्योंकि ये बहुत थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है हैशिंग वगैरह का, कि डिक्शनरी कैसे स्टोर होती है, हैशिंग का इसमें यूज़ होता है.
वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. हम एक यहाँ पर वी हैव सीन अनदर एग्जांपल कि इफ विद दिस आवर डिक्शनरी इफ वी सप्लाई एन इंडेक्स, तब क्या होगा. तो तब ये होगा कि इट विल टेक द कीज़ फ्रॉम द इंडेक्स ओनली. तो यहाँ इसने केवल 2 ही कीज़ ली है, जनवरी और अप्रैल. बाकी जो फेबररी जो थी ये की इसने अवॉइड कर दी है. और जो जनवरी इसने ली वहाँ इसने डिक्शनरी से वैल्यू ले ली 31, और अप्रैल की इसने वैल्यू नान का मतलब होता है मिसिंग डेटा की कोई भी वैल्यू नहीं है. वी विल डिस्कस दैट अबाउट ओके लेटर. सो टिल हेयर वी हैड डिस्कस्ड. नाउ लेट अस सी आर क्रिएटिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्केलर वैल्यू. कि अब स्केलर वैल्यू से कैसे हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो देखो अब हम जो है फिर एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ डेटा इज ए स्केलर वैल्यू, कि जो हमारा डेटा है अगर वो स्केलर वैल्यू है, इंडेक्स आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड. अब आप खुद ही सोचियो कि हमने डेटा केवल एक स्केलर वैल्यू दी है, तो इसका मतलब हमको इंडेक्स बतानी चाहिए कि हमको उस स्केलर बेसिकली करेगा क्या है. थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. वी मूव ऑन कि हमारे पास बेसिकली हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, pd.series, जहाँ पर हमने डेटा की जगह कोई भी स्केलर वैल्यू दे दी. ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो है इंडेक्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंडेक्स ही हमको बताएगा कि हमारे कितने एलिमेंट होंगे उस सीरीज ऑब्जेक्ट में. तो बेसिकली इंडेक्स हमारी 1 2 3 होगी, 10 10 और 10. उस केस में अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये एरर शो करेगा. ठीक है, इफ़ वी डू नॉट प्रोवाइड द इंडेक्स ये एरर शो करेगा, क्योंकि इस केस में इसको पता चलना चाहिए कि भाई कितने 10 मेरे को फिलअप करने हैं. ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ तो एक स्केलर वैल्यू कोई लिस्ट तो है नहीं है, तो यहाँ ये जो है इसका आउटपुट होगा. सो लेट्स मूव ऑन. तो ये pd.series है, ये 10 है, ये इंडेक्स हमने प्रोवाइड करा रेंज 01. रेंज 01 बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, केवल एक 0, एक सीक्वेंस रिटर्न करेगा. वही हमारा इम्यूटेबल सीक्वेंस है जो हम डिस्कस कर चुके थे. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी मुझे यहाँ पर लगाने नहीं चाहिए, तो मुझे केवल यहाँ 0 ही लिखना चाहिए कि 0 एक सीक्वेंस रिटर्न करेगा. तो ये यहाँ मेरा 0 इंडेक्स हो गया और ये 10 वैल्यू होगी. लेकिन अगर मुझे एक रेंज में चाहिए, जैसे रेंज 162 है, तो रेंज 162 क्या रिटर्न करेगा, 1 3 और 5. तो 135 मेरी इंडेक्स हो गई और इसके लेवल में 15 आ गई, तो ये 15 15 15 हो गया. नाउ लेट अस सी ए क्वेश्चन ऑन इट. Write a program to create a series object that stores the initial budget allowed 50,000 each for the 4 quarters, quarter 1, quarter 2, quarter 3. मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन ये है कि आपको क्या क्रिएट करना है. आपको हम मूव टू दैट पेज कि हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, जिसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 ये सब इंडेक्स हो, और सब में जो है केवल 50,000 50,000 और 50,000 था. ठीक है, तो बेसिकली हमको एक ऐसा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें डेटा एरे में सारी वैल्यू सेम हो, 50K हो, और जो इंडेक्स है हमारा वो ये हो, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3. तो यही तो अभी हमने देखा था, एक्सप्लेन यही तो किया था पिछले पेज पर. देखो कि 10 है और इंडेक्स हमने प्रोवाइड कर दी, सब में 10 फिलअप कर दिया. तो यही वो क्वेश्चन है. तो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो, तो यही तो हमको क्रिएट करना था. कैसे क्रिएट करेंगे बेसिकली, तो ये हमारा जो है ये हमको करना था. तो यही pd.series है, ये 50,000 है, और ये इंडेक्स हमने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये हमने पास कर दी लिस्ट में. ठीक है, वही सेम चीज़ हो गई. अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ मेडल्स टू बी वॉन इन 200 इज़ 200. कि दो टोटल जो मेडल्स हैं वो 200 हैं इन द इंटर यूनिवर्सिटी. कोई गेम है बेसिकली उसमें, अल्टरनेट ईयर. ज़्यादा डिटेल्स में फोकस नहीं करना है हमको कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, कब क्या हुआ था, कौन सा गेम है, क्या है. हमको हमारे पर्पज़ से मतलब है, हमको बस ये समझ में आ गया कि 200 जो है मेडल्स हैं और हर साल. तो ये क्या अगर अल्टरनेट ईयर, एक साल के बाद एक साल. राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर दीज मेडल्स फॉर गेम्स टू बी हेल्ड इन द डिकेड. कि मतलब 2020 से 2029 तक. ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन हमारा फिर से क्या है, हमारा ये है कि 2020 से 2029
अल्टरनेट ईयर में, मतलब एक साल के बाद एक साल, हर साल क्रिएट होता है और हर साल जो है मतलब एक साल को छोड़ के हर दूसरे साल जो है गेम्स होते हैं और 200 उसमें मेडल्स होते हैं। इसका एक सीरीज ऑब्जेक्ट वी हैव टू क्रिएट। सो बेसिकली हमको क्या करना है, 2020, 2022, 2024 और ये चलाएगा हमारा 2028 तक, और हर साल 200, 200, 200 और अगेन 200। तो ये हमारा डेटा एरे होगा। बेसिकली सेम चीज़ है जो हम कर चुके हैं। अब ये जो इंडेक्स हमको करना है, केवल यहाँ केवल एक ये ही ट्रिक है कि ये इंडेक्स हमको क्रिएट करनी है, तो उसी की ही एक ट्रिक है। तो वो ही ट्रिक हमको यहाँ दे रखी है, वही हमारा 200 हो गया pd.series, और इंडेक्स हमारे 220 से 2020 से 2029 तक, और जो है इंक्रीमेंट जो है आप 2 का कर दो यहाँ पर, सेम ही चीज़ है, वही हमारा जो है इंडेक्स एरे बन जाएगा जो हम चाहते हैं। सो दैट्स इट डन। हम नाउ सी एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज स्पेसिफाइंग एडिंग नॉन वैल्यूज इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमको क्या देखना है कि नॉन वैल्यू बेसिकली होती क्या है। ठीक है, नॉन वैल्यूज क्या होती है कि मिसिंग डेटा। बेसिकली लेट्स सी, सपोज ये हमारा डेटा एरे है। ठीक है, इसमें हमने कोई वैल्यू रखी 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, और सपोज 2000, ये हमारा प्रीवियस ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2020, 2024 और 2026 एंड सपोज इट गोज ऑन। एंड यहाँ जो है 2020 में हमको नहीं पता कितने मेडल होंगे, ये श्योर नहीं है। बाकी सब तो हमने कह दिया कि भाई 5 होंगे इस साल तो, और 2024 में 6 होंगे, मतलब 2024, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, कि सपोज हमारे 5, तो पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे 2020 में बेसिकली 200 मेडल्स थे, 2022 में भी 200 मेडल्स होंगे। ठीक है, और 2024 में भी 200 मेडल्स ही होंगे। ठीक है, लेकिन सपोज इस साल जो है कोरोना की वजह से जो है हमारे पास मेडल्स जो हैं सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई इस साल जो मेडल्स हैं हमको पता नहीं है कितने होंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है। और बाकी तो यूजुअली जैसे हर साल 200 मेडल्स होते ही हैं, वैसे 200 मेडल्स ही होंगे। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से 200 मेडल्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ गेम्स नहीं हो रहे होंगे, कितने होंगे अभी डिसाइडेड नहीं है। तो हमको एक ऐसा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें बेसिकली ये जो वैल्यू है 2020 की ये मिसिंग है, और बाकी तो हमको वी ऑलरेडी नो दैट बाकी तो 200 है ही। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है, मतलब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में तो यूजुअली ऐसा आया होगा कि सपोज मैं एक ऐसा भी तो क्रिएट कर सकता हूँ ना कि मैं ये वाली लिस्ट क्रिएट कर दूँ, यहाँ पर पहली ब्लैंक छोड़ दूँ और 200 ये मेरा जो है डेटा एरे क्रिएट कर दूँ, ऐसा कुछ पहली ब्लैंक छोड़कर बाकी वो कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आप कुछ ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर आपको एक वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है जो ये बताएगी कि नहीं यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये ही एक तरीका होता है, हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नान, और इनफैक्ट बेसिकली हमको लिखना पड़ेगा np.nan, क्योंकि ये numpy में डिफाइंड है। ये जो नान है आपका numpy में डिफाइंड है। तो आप यू कैन इमेजिन दैट नान इज बेसिकली ए वेरिएबल, यू कैन थिंक बेसिकली इट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, नान इज बेसिकली कांस्टेंट विच इज डिफाइंड इन द numpy लाइब्रेरी। तो इसको यूज़ करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ np.nan। सो व्हाट इट विल से दैट कि जो फर्स्ट प्लेस पर डेटा है वो मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, बेसिकली वो मिसिंग है। तो ये चीज़ जो है मिसिंग शो करती है यहाँ पर। देखो, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो एसक्यूएल में भी हम मिसिंग डेटा यूज़ करते हैं। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वहाँ पर भी हम मिसिंग डेटा यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जैसे ये मान लो कि हमारी ये टेबल है, ठीक है, ये हमारी टेबल है, और सपोज हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हम ले रहे थे कि 2020 है हमारा, और यहाँ पर हमने नल पास कर दिया। 2022 में हमने यहाँ पर 200 ले लिया, और 2024 में भी हमने 200 ले लिया। ये बेसिकली सपोज हमारा जो है एक एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी एक टेबल, हम कह सकते हैं कि हमारी एक टेबल है, एसक्यूएल टेबल है। तो हम इस पर क्वेरी कैसे करेंगे, अगर मुझको ये चाहिए कि कौन से में नल है, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट, और बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक मेडल कॉलम है और यहाँ पर ये एक ईयर कॉलम है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मेडल फ्रॉम टेबल
और टेबल का कोई नाम है, सपोज टेबल 1 वेयर, और हमको अगर ये चाहिए ईयर चाहिए तो सिलेक्ट हम करेंगे सिलेक्ट ईयर फ्रॉम टेबल वेयर मेडल इज नल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है हमको क्या रिटर्न कर देगा, ये हमको 2020 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कि जो नल का जो कॉन्सेप्ट था वो वही है कि यहाँ पर जो नल वैल्यू है, जो मिसिंग वैल्यू थे एसक्यूएल में, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NULL से, कि जो मिसिंग वैल्यू है, सेम कॉन्सेप्ट है कि ये मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं नल से। तो एसक्यूएल में अगर हमको ये नल वैल्यू चेक करनी होती तो हम कर सकते थे इज नल। अब यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने हमारा जो एरे क्रिएट करा, हमने पहले वाला ये मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम np.nan। तो एसक्यूएल में हम यहाँ पर नल लिख रहे थे, एसक्यूएल आप पहले कर चुके हो, रिमाइंड करो कि हम नल वैल्यूज़ को कैसे करते थे, अगर नहीं किया है तो हम 12th में देखेंगे। यहाँ पर जो है np.nan से रिप्रेजेंट करते हैं नल वैल्यू को। ठीक है, ये हमने नल वैल्यू यहाँ पर क्रिएट कर दी, इसको ऐसे हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये है कि ये बेसिकली np.nan बता रहा है हमारा मिसिंग डेटा, कि यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि चेक कैसे करूँगा कि यहाँ पर मिसिंग डेटा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, या पहले हमारे उसी पेज पर चलते हैं कि टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग डेटा वी यूज ईदर numpy.nan और none विच आर सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ नल वी हैव इन एसक्यूएल। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल कि यहाँ पर हम नन की भी बात कर रहे हैं कि हम नन भी पास करवा सकते हैं यहाँ पर np.nan की जगह। देखिए ये वही चीज़ है जो हमने पहले देखी थी, जब हमने देखा था कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के केस में हमने देखा था कि जो हमारा इंडेक्स होता है वो तो कुछ और होता है, नन होता है, लेकिन जो अंदर जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लेट अस सी कि यहाँ पर हम नन भी पास कर सकते हैं, लेकिन नन क्या करेगा कि नन अगर हम पास करेंगे तो वो नान ही लेगा। देखो हम एग्जाम्पल भी हमने शो करा हुआ है बेसिकली कि ये क्या होगा कि सपोज मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा pd.series, जिसमें मैंने लिस्ट ली, जिसमें पहला एलिमेंट 6.5 है, दूसरा np.nan है, तीसरा 2.34 है। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये बेसिकली मेरा एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 6.5 होगा, दूसरा नान होगा और तीसरा 2. नान का मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर। ठीक है, बस ये इसकी फुल फॉर्म है और ये जो है मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। सेकंड मैंने लिया 2.34, तो ये मेरा एक सीरीज ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो जाएगा और ये बता देगा कि यहाँ कोई नंबर है ही नहीं। अब देखो हम बार बार ये बात करें कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई नंबर है ही नहीं, इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ नान है, कि NaN जो है यहाँ पर नान स्पेसिफाइड है, लेकिन बहुत डिफरेंस है ये कहने में कि यहाँ एक नान स्टोर्ड है और एक यहाँ पर कोई मिसिंग डेटा है, दोनों में थोड़ा अंतर है। लेट अस सी, तो इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप जो हो जाएगी 64 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वो भी ले रखा है, फ्लोट टाइप वैल्यू भी ले रखी है। अब देखो इस एग्जांपल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमने लिया SO = pd.series और np.nan, नन और नन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे ही मैंने np.nan पहले लिया, इसका मतलब कि जो मेरा है ये देखो ऊपर मैंने थोड़ा क्रिएट कर रखा है इसको, इसका मतलब पहली एंट्री नान है, नान का मतलब है मिसिंग डेटा, दूसरी एंट्री भी नान है, तीसरी एंट्री नन पास करिए तो भी नान ही है, चौथी एंट्री नन पास करिए तो भी नान है। तो आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आप अगर नन पास करोगे तो वो नन स्टोर नहीं करेगा, वो स्टोर नान ही करेगा। नन और नान दो अलग अलग चीज़ें हैं, रिप्रेजेंट सेम ही चीज़ करती है मिसिंग डेटा को। जैसे आपका रेंज और अरेंज होता है ना, सेम ही रिजल्ट होता है उनका, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, टेक्निकली कुछ डिफरेंस होता है। वहाँ पर यहाँ पर नन और नान जो है बेसिकली सेम रिप्रेजेंट, वो सेम ही चीज़ को करते हैं, मिसिंग चीज़ को, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं नन पास करूँगा तो भी वो चेक करेगा कि अच्छा यहाँ नन पास करा है, नन पास करा है तो नान पुट कर देगा। ठीक है, सेम नहीं है दोनों, नान इज़ नॉट इक्वल टू नन। ठीक है, यहाँ देखो हमने देखा है कि तो ये हो गया व्हेन वी स्पेसिफाई नन, नान इज स्टोर्ड इन स्टेट। अगर हम नन पास करेंगे तो नान स्टोर होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नन और नान दोनों सेम है। ठीक है,
अब ये देखो, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि S0 जो है S1 के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स आया है। फॉल्स आया है इसका मतलब है जो S0 जो है वो आपका S1 के बराबर नहीं है। अब आप देखोगे सर S0 में भी नान है, S1 में भी नान है, तो बराबर हो गए। यही मैंने आपको कहा था कि नान होने में और मिसिंग डेटा होने में अंतर है। अगर हम ये सोचेंगे कि दोनों नान है तो हमको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन नान रिप्रेजेंट करता है मिसिंग डेटा को। अब आप ये देखिए कि S0 क्या है कि कुछ मिसिंग है, S1 क्या है, मिसिंग डेटा है। अब कुछ डेटा वहाँ नहीं है, S0 पे भी नहीं है, S1 पे भी नहीं है, तो दोनों इक्वल कैसे हो गए जब डेटा ही नहीं है? तो हम डेटा की इक्वालिटी ही की तो बात कर रहे हैं। तो जब डेटा ही नहीं है तो दोनों इक्वल कैसे, दोनों के डेटा के इक्वल कैसे हो गए? समझ रहे हैं ना बात को? S0 क्या है, वहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, S1 क्या है, वहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, और S0 इक्वल टू S1 क्या चेक कर रहा है कि दोनों का डेटा इक्वल है। जब दोनों का डेटा ही नहीं है तो इक्वल कैसे हो गए? इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नान में और मिसिंग डेटा में क्या अंतर है। उसी तरह से S0 जो है S2 के भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी नान ही है, और S2 S3 के बराबर भी नहीं है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए कि नान जो है खुद के भी बराबर नहीं है, np डॉट नान इक्वल टू अगर np डॉट नान करेंगे तो वो भी फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? वही, क्योंकि दोनों ही मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नान मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भी मिसिंग वैल्यू। दो मिसिंग वैल्यूज आपस में बराबर कैसे हो सकती है? जबकि जो नन है वो बराबर बराबर होता है, तो वो ट्रू होता है। दो जो नन है वो बराबर होंगे, लेकिन नान, यही मैं कह रहा था कि थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा से सुनना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बुक में भी इतना डिटेल में नहीं बता रखा है जितनी हमने बात करी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। अब हम जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक ये देखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए एक लाइन और देख लीजिए, सो व्हेन वी स्पेसिफाई अ नन बेसिकली नैन इज स्टोर्ड, ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे जो बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसिंग डेटा तो आपने फिल कर दिया, लेकिन आप चेक कैसे करेंगे कि वहाँ मिसिंग डेटा है? क्योंकि आप नान रखकर चेक नहीं कर सकते। यही तो हमने देखा कि अगर मैं ये कहूँ कि क्या वहाँ पर नान है, तो इसका मतलब तो वो इक्वल कर दिया उसने नान को नान से, जबकि नान नान के तो इक्वल होता ही नहीं है। यही तो हमने देखा है कि मिसिंग वैल्यू को कैसे चेक करोगे कि वहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो वो जो है, नाउ वी विल डिस्कस दैट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, रिवाइज दिस चैप्टर, दिस नॉन कॉन्सेप्ट वाज वेरी डिफरेंट। बुक में भी इतना डिटेल में भी नहीं है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो भी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको देखनी है। ओके, सो दैट्स एंड फॉर नाउ, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।